میرا نام طاہرہ ہے اور اس وقت میری عمر تقریباً 16 سال کے قریب ہو چکی ہے۔ خدا نے مجھے اس قدر پرکشش اور خوبصورت بنایا ہے کہ جو بھی مجھے ایک نظر دیکھ لیتا پھر نظریں جھپکنا ہی بھول جاتا۔ ہمارے میٹرک کے امتحان ہونے والے تھے۔ میں کوئی کمزور اسٹوڈنٹ تو نہ تھی مگر ذہین بھی نہیں تھی، جس وجہ سے امتحانات کی تیاری کے لیے مجھے کسی نہ کسی سے رہنمائی کی ضرورت تھی۔ میری خالہ کا بیٹا بلال بھی ٹیوشن پڑھانے کا کام کر چکا تھا اور وہ ہمارے گھر سے زیادہ دور بھی نہیں رہتا تھا۔ میں نے اماں جان سے کہا کہ آپ بلال سے بات کریں کہ وہ فارغ وقت میں مجھے پڑھا دیا کرے، اس طرح مجھے ٹیوشن کے لیے زیادہ دور نہیں جانا پڑے گا، آنے جانے کی پریشانی بھی نہیں ہوگی اور وقت بھی ضائع نہیں ہوگا۔ اماں اسی دن بلال سے بات کرنے گئی اور واپس آ کر بتایا کہ انہوں نے بلال سے بات کر لی ہے اور ہر شام 7 بجے سے 9 بجے تک مجھے پڑھانے آیا کرے گا۔ اس دن میں نے جلدی جلدی تمام کام نپٹائے اور اپنی کتابیں لے کر ڈرائنگ روم میں پڑھنے بیٹھ گئی۔ تقریباً 7:30 بجے ہوں گے جب بلال بھی ہمارے گھر پہنچ گیا۔ سمینہ بلال کی عمر اس وقت 25 سال کے قریب تھی اور وہ بھی کافی وجیہہ اور ہینڈسم شخصیت کا مالک تھا۔ ان کا قد 6 فٹ کے قریب جبکہ جسم مضبوط اور توانا تھا۔ کلین شیو کے ساتھ اس کا سانولا رنگ قیامت خیز لگتا تھا۔ پھر رسمی سلام دعا کے بعد وہ مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، اچھا تو میری شاگرد پڑھائی کے لیے تیار ہے کیا؟ میں نے بھی سر لاتے ہوئے کہا، جی میں تیار ہوں، جس پر بلال نے اپنے چہرے پر ہلکی مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، زبردست، اب تم یہ بتاؤ کہ کس سبجیکٹ میں تم خود کو زیادہ کمزور سمجھتے ہو؟ بلال نے جب میری کتاب اٹھا کر اس کے ورق الٹے ہوئے کتاب پر ہی نظریں جمائے مجھ سے دوسرا سوال پوچھا تو میں نے انہیں بتایا کہ میتھ اور انگلش میں خود کو تھوڑی کمزور سمجھتی ہوں۔ میں تھوڑا سمٹ کر بیٹھی ہوئی تھی اور بات کرتے ہوئے بھی تھوڑا جھجک رہی تھی۔ پھر بلال نے کتاب میز پر رکھتے ہوئے میری جانب دیکھا اور بولا، اگر اسی طرح تم گھبرائی اور جھجکتی رہو گی تو میرا نہیں خیال کہ میں تم کو کچھ پڑھا پاؤں گا، وہ تم کو ذہن نشین بھی کرا سکوں گا، لہٰذا تمہیں ڈرنے جھجکنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ دوران اسٹڈی ہم صرف ٹیچر اسٹوڈنٹ کی طرح ہی نہیں رہیں گے بلکہ ہم بڑے دوستانہ ماحول میں اسٹڈی کریں گے تاکہ تم پر کسی قسم کا پریشر نہ پڑے، اور مجھے بھی تم پر امید ہے میں تمہیں جو بھی پڑھاؤں گا تم اسے یاد رکھو گی۔ جی ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کروں گی، میں نے خود کو ذرا ریلیکس ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ کہا، خیر اس دن پڑھائی تو کوئی خاص نہ ہوئی لیکن بلال نے اپنی باتوں اور چٹکلوں سے میری جھجک ضرور ختم کر دی۔ نتیجتاً میں خود کو پہلے کی نسبت کہیں زیادہ پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے برا نہیں مانا اور بلال کے چٹکلوں کا جواب بھی اسی انداز میں دینے لگی۔ میرا چنچل پن بھی جیسے بیدار ہو چکا تھا۔ پھر بلال نے مجھے تھوڑی سی میتھ کی مشق کرائی اور انگلش سبجیکٹ شروع کرنے کا کہہ کر واپس جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، مگر اماں نے فوراً روک لیا، بلال بیٹا کچھ دیر اور رک جاؤ، چائے تو پیتے جاؤ۔ یوں 2-3 بار انکار کرنے کے بعد بلال بھی چائے پینے کے لیے بیٹھ گئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد امی ٹرے میں ایک چائے کا کپ لیے کمرے میں داخل ہوئی، جسے شکریہ کہتے ہوئے بلال نے پکڑا۔ پھر چائے اور تھوڑی گپ شپ کے بعد بلال مجھے دل لگا کر پڑھائی کرنے اور کل شام 7 بجے آنے کا کہہ کر گھر واپس چلے گئے۔ پھر تقریباً 2 ہفتوں تک ہمارے معمولات ایسے ہی چلتے رہے۔ اس دوران میں نے نوٹ کیا تھا کہ بلال وقت کے خاصے پابند ہیں، یعنی وہ پورے وقت پڑھاتے اور اپنا کام وقت پر کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ ان کی شخصیت کافی سنجیدہ اور جاذب نظر تو تھی ہی مگر ان کے پڑھانے اور سمجھانے کا انداز بھی بہت اچھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے اس مختصر سے عرصے میں ہی بلال کی گرویدہ ہو چکی تھی اور ان سے کافی بے تکلف بھی ہو چکی تھی۔ پھر ایک دن یوں ہی جب بلال صاحب مجھے میتھ کی مشق کروا رہے تھے تو اسی دوران اماں ان کے لیے چائے لے آئی۔ انہوں نے چائے میز پر رکھی اور بولے کہ بیٹا پہلے تم چائے پی لو پھر پڑھا لینا ورنہ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر امی واپس کچن میں چلی گئیں۔ اس دوران جب میری مشق بھی ختم ہو گئی تو میں نے چائے کا کپ اٹھا کر جب بلال کو پکڑانا چاہا تو پتہ نہیں کیا ہوا کہ ایک دم سے میرا ہاتھ کانپ گیا اور ساری کی ساری چائے بلال کے اوپر گر گئی، جس سے ان کی پتلون اور شرٹ بھیگ گئی۔ یہ منظر دیکھ کر میرے تو جیسے اوزان ہی خطا ہو گئے۔ پھر میں اسی بکھلاہٹ میں تیزی سے دوڑتی ہوئی گئی اور جلدی سے تولیہ اٹھا لائی۔ میں بار بار بلال کو سوری کر رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ ان کی شرٹ کو تولیے سے خشک کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بلال صاحب آپ جلے تو نہیں؟ میں نے مسلسل تولیہ رگڑتے ہوئے پوچھا، جس پر وہ ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے بولا، چائے سے تو نہیں جلا لیکن اب تم مجھے ضرور جلا ڈالو گی۔ میں ان کے اس جملے کو بالکل بھی نہیں سمجھ سکی اور اسی دوران تولیے سے ان کی شرٹ کو خشک کرنے میں لگی رہی۔ میں شاید کچھ دیر اور اسی طرح تولیے سے انہیں خشک کرنے میں لگی رہتی پر بلال نے خود ہی مجھے روک دیا اور مجھے دونوں کندھوں سے پکڑ کر کھڑا کرتے ہوئے بولے، اب بس بھی کرو پگلی، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم خواہ مخواہ میں پریشان ہو رہی ہو۔ لیکن میں اپنی اسی حرکت پر اندر ہی اندر بہت زیادہ شرمندہ ہو رہی تھی، اسی لیے جب میں نے انہیں اس طرح شفقت سے پیش آتے ہوئے دیکھا تو میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ انہوں نے جب مجھے یوں روتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے مجھے اپنی آغوش میں لیتے ہوئے اپنے سینے سے لگا لیا اور ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولے، ارے پگلی روتی کیوں ہو؟ اس میں بھلا رونے والی کون سی بات ہے؟ تم نے چائے جان بوجھ کر تھوڑی گرائی ہے، یہ تو حادثاتی طور پر ایسے ہوا ہے۔
ان के यूं ढारस बांधने पर मुझे काफी हौसला हुआ और मैंने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि ये सब हादसाती तौर पर हुआ है, लेकिन हादसात भी तो किसी न किसी गलती का ही नतीजा होते हैं और उसी हादसे की गलती की मैं ही जिम्मेदार हूँ। इस दौरान चूंकि माहौल काफी गमगीन हो चुका था, इसलिए बिलाल शायद माहौल को खुशगवार बनाना चाहते थे। लिहाजा वो बोले कि मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ कि तुम ऐसे हादसात रोज किया करो। वो हंस रहे थे और उनकी ये मैनीखेज हंसी मुझे समझ से बाहर थी। मैं भी उन्हें हंसता हुआ देखकर मुस्कुरा दी। बिलाल ने कहा, चलो वापस वहीं से हम स्टडी शुरू करते हैं जहाँ पर यह हादसा हुआ था। ये कहते हुए उन्होंने मुझे अपनी आगोश के घेरे से आजाद कर दिया। मैं जब वापस अपनी कुर्सी पर बैठकर किताब खोलना चाही तो अचानक बिलाल ने कहा कि आज का काम यहीं पर खत्म करते हैं, अब मैं चलता हूँ, क्योंकि इस वक्त मेरी जो हालत है, इस हालत में मैं तुम्हें कुछ भी नहीं पढ़ा पाऊंगा। बिलाल अपनी किस हालत के बारे में ऐसा कह रहे थे, उस वक्त मुझे कुछ पता न चला। उस दिन जब मैं बेड पर थी तो ये वाकया बार बार मेरे दिमाग में घूम रहा था और ये सब उस वक्त तो मेरे लिए बेमैनी था, लेकिन अब इन वाकयात को सोचना न जाने क्यों मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। अभी मैं इन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी कि मुझे पता ही न चला कि कब मुझे नींद ने आ लिया और मैं नींद की गहरी वादियों में गोते खाने लगी। इस रात मैंने ख्वाब में बिलाल को देखा। कभी हम किसी नदी के किनारे बैठे बातें कर रहे होते, कभी किसी पार्क के कोने में किसी बेंच पर बैठे कभी राजों न्याज की बातें कर रहे होते, कभी पहाड़ों जंगलों और सहराओं में तो कभी छाठे मारते हुए समंदर की लहरों से खेल रहे होते। और उस रात मैंने और बिलाल ने मिलकर दुनिया जहान की सैर की थी। मैं उस दिन बहुत गहरी नींद सोई थी। फिर जब सुबह उठी तो मेरे ख्वाब का हर हर मंजर मेरे जहन में गर्दिश कर रहा था। न जाने क्यों मैं बिस्तर से उठना ही नहीं चाह रही थी। मैं इन ख्वाबों की दुनिया से निकलना ही नहीं चाह रही थी। मुझे कुछ भी इल्म नहीं था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, पर जो भी था बहुत पुरलुत्फ था। दूसरी शाम जब बिलाल हमारे घर पहुंचे तो मैं इस वक्त नहा कर निकली थी और मेरे बाल भी गीले थे और उनसे अभी तक पानी टप रहा था। और इस दौरान बिलाल की बार बार उठती हुई नजर को मैं बखूबी नोट कर रही थी। मैं तो बिलाल को पहले ही अपने ख्वाबों में बसा चुकी थी, लेकिन दूसरी तरफ भी मुझे वाज़ेह फर्क महसूस हो रहा था कि बिलाल के मन में भी जरूर कोई बात चल रही है। दौरान स्टडी मुझे आज मेरे दिल में अजीब अजीब ख्यालात आ रहे थे। मैं नहीं जानती थी कि प्यार क्या है, लेकिन इतना जरूर था कि बिलाल के ख्यालात मुझे मदहोश कर रहे थे। जिंदगी में मुझे ऐसी फीलिंग पहले कभी भी नहीं हुई। यूं ही जब बिलाल मुझे मैथ के एक सवाल की मशक करा रहे थे तो इसी दौरान मैं खुद उनके बहुत करीब हो गई। मैंने ऐसा कोई इरादा तो नहीं किया था, मगर ऐसा होना इत्तेफाक भी नहीं था। आखिर 9 बजे जब बिलाल घर जाने के लिए उठे तो मैं भी उनके साथ ही किताबें समेट कर उठ खड़ी हुई। तो उन्होंने मेरे करीब से गुजरते हुए बड़ी आहिस्तगी से कहा, ताहिरा, सच पूछो तो आज तुम वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैंने जब चौंक कर उनकी तरफ देखा तो इस दौरान वो मुझसे दूर हट चुके थे। इस बार भी उनके अल्फाज सारी रात मेरे कानों में बजते रहे। शायद खवातीन के मुतालिक सच कहा जाता है कि वो बहुत खुद पसंद होती हैं, इसीलिए उनकी तारीफ की जाए तो वो फूले नहीं समाती। अगले दिन भी बिलाल वक्त पर ही आ गए। अभी हमने स्टडी शुरू की ही थी कि इसी दौरान बिजली चली गई। मैंने कहा, आप बैठे, मैं मोमबत्ती जला कर लाती हूँ। अभी मैं उठने ही लगी थी तो फौरन ही बिलाल ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोले, बैठ जाओ, एक दिन ना भी पड़ेंगे तो खैर है, आओ ऐसे ही बैठकर बातें करते हैं, तब तक बिजली भी आ ही जाएगी। बहाने तो मैं भी ढूंढ रही थी, लिहाजा मैं भी उधर ही बैठ गई, मगर इस दौरान पंखा बंद होने की वजह से मुझे पसीना भी बहुत आ रहा था। बैठकर फिर हम इधर उधर की बातें करने लगे। इसी दौरान बिलाल ने मेरा हाथ ऐसे ही पकड़े रखा, लेकिन मुझे ये बहुत अजीब लग रहा था। अगरचे बिलाल की मोहब्बत मुझ पर हावी हो चुकी थी और उनकी पुरअसर शख्सियत ने मुझ पर जादू सा कर दिया था, लेकिन मैं उनसे फौरी रिएक्ट करने की तवक्का नहीं कर रही थी। कमरे में इस वक्त चूंकि अंधेरा था और हम एक दूसरे के चेहरों के तासुरात नहीं देख पा रहे थे। हकीकत कहूँ तो मुझे उनके हाथों में अपने हाथ बहुत सुकून बख्श रहे थे, लेकिन मुझ में कोई अंदरूनी खौफ था जो मुसलसल रोक रहा था। लेकिन अगर बिलाल की जगह कोई भी और इंसान होता तो मैं यकीन से कह सकती थी कि मैं उसका मुंह नोच लेती, लेकिन बिलाल के लिए तो मैं पहले से ही सब कुछ हारी बैठी थी। लेकिन फिर भी मैंने ये सब नहीं चाह रही थी। जो हो रहा था मुझे ये मामला बहुत अजीब लगने लगा, इसीलिए मैंने बिलाल के हाथों से अपना हाथ छुड़ाया और टॉयलेट जाने का बहाना बनाकर वहां से उठ गई। मगर जैसे ही मैं जाने लगी, न जाने क्यों एकदम से डगमगा गई। इसी लम्हे बिलाल ने हाथ बढ़ाकर मुझे सहारा दिया तो मैं बार बार गिरने से बची। शायद ऐसा इसीलिए हुआ था कि मैं उस वक्त बहुत ज्यादा नर्वस हो रही थी। फिर मैं जल्दी से टॉयलेट की तरफ भागी। मुझे वहां जाने की जरूरत तो ना थी, लेकिन ठंडे पानी के शावर तले खड़े होकर गर्मी का एहसास कुछ कम जरूर हो गया था। मैं भी टॉयलेट में ही थी कि इस दौरान बिजली भी आ गई। फिर जब मैं वापस ड्राइंग रूम में आई तो बिलाल वहां मौजूद नहीं थे। मुझे परेशानी हुई, ऐसा क्या हो गया कि वो बगैर बताए ही चले गए। उसी वक्त अम्मा ड्राइंग रूम में आई तो उन्होंने कहा कि बिलाल कह रहा है कि उसके सर में शदीद दर्द हो रहा है, बिजली भी नहीं है, इसीलिए गर्मी के बायस अंदर बैठना भी मुहाल हो रहा है, इसलिए वो घर जा रहा है। मैंने भी जी ठीक है अम्मी जान बोलकर जल्दी से अपनी सारी किताबें समेटी और अपने बेडरूम में चली आई।
इस वक्त भी मेरी सोचों का महवर बस बिलाल ही थे। मैं अपना ध्यान इधर उधर भटकाने की कोशिश करती रही, मगर फिर भी नाकाम रही। उस रात भी मैं उन्हीं की सोचों में गर्क होकर सो गई। सुबह जब उठी तब भी बिलाल ही गैर इरादा तौर पर मेरे जहन में छाया रहा। सारा दिन मैं उन्हीं की यादों में मसहूर रही और अब न जाने क्यों मैं शाम होने से पहले ही बड़ी बेचैनी से शाम होने का इंतजार करने लगी थी, क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि बिलाल आ जाकर मुझसे कैसा बर्ताव करते हैं। लेकिन ट्यूशन का वक्त होने के बावजूद भी वो नहीं आए। मैं बस उनका इंतजार करती रह गई। फिर जब ट्यूशन टाइम से 1 घंटा ऊपर हो गया, यानी जब 8 बज गए और वो तब भी ना आए, तो मैंने परेशानी के आलम में अपनी अम्मा से कहा, अम्मी खुदा करे सब खैरियत हो, पता नहीं आज बिलाल साहब मुझे ट्यूशन पढ़ाने क्यों नहीं आए। अम्मा ने कहा, परेशान क्यों हो रही हो, दुनिया में और थोड़े काम है, शायद उसे भी कोई और काम पड़ गया हो, इसीलिए वो आज ना आ सका हो। मैंने कहा, नहीं अम्मा, आपको भी याद होगा कि जब वो कल गए थे तब उनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। क्या पता वो अब तक ठीक ही ना हुए हों। आप खाला को फोन करके उनका पता तो करें। अम्मा को भी जब ये सुनकर शायद कुछ याद आया तो उन्होंने फौरन खाला को फोन किया। तब खाला ने बताया कि बिलाल तो कल से ही सख्त बुखार में तप रहा है। ये सुनकर मुझे सख्त बेचैनी हुई। दिल चाहा कि अभी जाकर मैं खुद उनका बुखार चेक करूं और उनकी खैरियत मालूम करूं, लेकिन मैं इस वक्त कुछ भी नहीं कर सकती थी। फिर सुबह मैंने अम्मा को साथ लिया और खाला के घर बिलाल का हाल मालूम करने चली गई, तो देखा कि बिलाल वाकई बुखार की हालत में बिस्तर पर पड़े थे। थोड़ी रस्मी बातचीत के बाद मैं वहीं बैठ गई। खाला और अम्मा भी मेरे साथ बैठ गई और अपनी बातों में मसरूफ हो गई। बिलाल ने एक बार हमारी तरफ देखा और फिर अपनी आंखें बंद कर ली। हम खाला और अम्मा की मौजूदगी में एक दूसरे से कुछ भी नहीं कह सकते थे, इसीलिए खामोशी से बैठे रहे, जबकि इसी दौरान खाला और अम्मा आपस में तवील बातें करती रहीं। उन्हीं बातों में खाला ने बताया कि उनकी सहेली की बेटी की शादी थी, जहां उनका जाना बहुत जरूरी था, लेकिन वो नहीं जा सके। अम्मा ने पूछा कि क्यों नहीं जा सकी, तो खाला बोली कि जिसके साथ जाना था वो तो बिस्तर पर पड़ा है और आपके भाई साहब यानी अकबर भी ऑफिस से छुट्टी नहीं ले सके, लेकिन उनके साथ ही चली जाती। अम्मा चूंकि खाला की सहेली को जानती थी और उन्हें पता था कि वो कहाँ रहती है, इसलिए उन्होंने खाला से कहा कि तुम्हारी सहेली कौन सा किसी दूसरे शहर में रहती है, तुम यहाँ से कोई भी टैक्सी पकड़ो तो आसानी से 2-3 घंटे में वहां होकर वापस भी आ जाओगी। मैंने जब ये सुना तो इसी वक्त मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। अगर अम्मा और खाला शादी पर चले जाएं तो मुझे बिलाल से अकेले में बात करने का मौका मिल जाए। यही सोचकर मैंने भी अम्मा की तारीफ करते हुए कहा, खाला अगर आपकी सहेली इसी शहर में रहती है तो फिर आप जरूर जाएं। बिलाल की फिक्र बिल्कुल मत करें, वो कजन होने के साथ साथ मेरे टीचर भी हैं। 2-3 घंटों तक उनकी तीमारदारी कर लूंगी। खैर फिर उसी तरह कुछ ही मिनट में मैंने खाला और अम्मा दोनों को इस शादी में जाने पर आमादा कर लिया। अगरचे अम्मा का दिल जाने को नहीं मान रहा था, लेकिन आखिरकार वो राजी हो गई और इन दोनों के जाने के बाद अब घर में सिर्फ मैं और बिलाल ही रह गए। फिर तकरीबन 15 मिनट तक हम दोनों में किसी किस्म की बातचीत न हुई और बिलाल पहले की तरह ही आंखें मूंदे लेटे रहे। शायद वो इस इंतजार में थे कि बात करने का आगाज मैं ही करूं, लेकिन मैं खुद भी इस वक्त जब का शिकार थी कि बात कैसे और कहां से शुरू करूं, और मैं यूं ही सर झुकाए अफसरदा सी होकर बैठी रही। इसी वजह से माहौल में एक अजीब सी खामोशी और तन्हाई का असर छाया हुआ था। अभी इसी खामोशी को छाए हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि तभी आहिस्ता से बिलाल ने मेरी तरफ करवट लेकर अपनी आंखें खोल दी और बड़े नरम लहजे में मुझे कहा कि ताहिरा, उस दिन चाहे ने मुझे जरा बराबर भी नहीं जलाया था, लेकिन सच पूछो तो चाय के बजाय तुमने मुझे जला डाला था। उनकी ये पुरस्कार आवाज जब मेरी समातों से टकराई तो मैंने फौरन उनकी तरफ देखा, तो इस दौरान बिलाल की मैनीखेज नजरें पूरी तरह मेरे चेहरे पर गड़ी हुई थीं। फिर वो बोले, तुम शायद समझ रही हो कि मैं बुखार में तप रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल मेरे बुखार की ये आग जिसमें मैं सुलग रहा हूँ तुम्हारी ही मोहब्बत की जलाई हुई है। मेरे माथे पर अपना हाथ रखकर देखो कैसे जल रहा है। ये कहते हुए उन्होंने मेरा हाथ अपने माथे पर रख दिया और उनका माथा वाकई इस वक्त अंगारों की तरह दहक रहा था। मेरे लबों से बेख्तियार निकला, जी जी बिलाल साहब, ऐसा ही है, आपको तो बहुत तेज बुखार है। इस दौरान वो दीवानों की तरह मेरे हाथ को अपने चेहरे पर रखे हुए था, जैसे यूं करने से उन्हें बहुत सुकून मिल रहा हो। और सच तो ये था कि मैं भी इस वक्त खुद को बहुत पुरसुकून महसूस कर रही थी, लेकिन शायद अनजाने में ही सही, लेकिन मोहब्बत तो मुझे भी उनसे हो गई थी, इसीलिए मुझे उनकी फिक्र में उनका सर दबाने लग गई ताकि उनके सर का दर्द कुछ कम हो जाए। मेरा ऐसा करने से उन्हें इतना सुकून मिला कि वो पल भर में ही दोबारा नींद की आगोश में चले गए और मैं बड़े गौर से उनका चेहरा देखती रह गई, क्योंकि आज मेरे पास मौका था मैं उन्हें जी भर के देख सकूं। खैर फिर कुछ ही घंटों बाद अम्मी और खाला भी घर वापस आ गई और हम दोनों माँ बेटियां भी खाला से इजाजत लेकर अपने घर वापस लौट आईं। और बिलाल इस वक्त भी नींद की आगोश में डूबा हुआ था, शायद ऐसा बुखार की वजह से था। इस बात को भी 2 ही दिन गुजरे थे कि उस दिन अचानक से हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई। जब मैंने दरवाजा खोला तो सामने बिलाल और उसकी माँ यानी मेरी खाला खड़ी थी और उनके हाथ में कुछ सामान वगैरह भी था जिन्हें शापर में पैक किया हुआ था। मैंने उन्हें अंदर आने का बोला तो खाला मेरे माथे पर बोसा देते हुए अंदर आ गई और इस दौरान बिलाल भी बिल्कुल हशाश बशाश और मुतमईन सा नजर आ रहा था।
بلال نے بھی مسکراتے ہوئے بڑے پیار سے مجھے سلام کیا اور وہ دونوں ماں بیٹا اندر جا کر میری ماں کے پاس بیٹھ گئے اور میں ان کی خاطر توازہ کا سامان بنانے کے لیے کچن میں چلی گئی اور پھر جب میں نے اپنے ہاتھوں میں چائے اور باقی لوازمات کی ٹرے لیے کمرے میں داخل ہوئی تو سب کے چہروں پر مسکراہٹ چھائی ہوئی تھی۔ خیر میں نے جب خالہ اور بلال کے سامنے ٹرے رکھی تو اسی دوران خالہ نے بڑے ہی نرم انداز میں میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے پاس بٹھا لیا اور شفقت بھرے انداز میں مجھ سے پوچھا، طاہرہ بیٹی کیا تم میری بہو بننا پسند کرو گی؟ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ خالہ کے منہ سے یہ بات سن کر میں نے اچانک ان کے چہرے کو دیکھا تھا اور پھر جب میری ماں نے بھی مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تو میں بھی شرماتے اور مسکراتے ہوئے سر جھکا گئی۔ پھر امی اور خالہ کے درمیان یہ فیصلہ ہوا کہ جیسے ہی طاہرہ اپنی باقی کی تعلیم مکمل کر کے 18 سال کی عمر کو پہنچے گی ہم اس کی رخصتی کر دیں گے، تب تک یہ رشتہ منگنی تک ہی محدود رہے گا۔ میں اور بلال وہ خوش نصیب تھے جنہیں بڑی آسانی سے ان کی محبت مل گئی تھی، ورنہ محبت کا مل جانا ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ دعا ہے اللہ ہر کسی کے نصیب اچھے کرے اور ان کی ہر جائز حاجات کو پورا کرے، آمین۔